Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to all my students. Shatreen Sawati is here from Biosciences with Shatreen Sawati, and today I will deliver the lecture from genetics on gene linkage. And before discussing the and coming towards the topic of gene linkage, I will share a news with you people, that a very good news. The schools, colleges, and universities will be reopened from Monday, 18th January. And I am delivering a lecture today, which is 17th January and Sunday. And the time is round about 10:50. So now I'm coming towards my topic, which is gene linkage. But before discussing the gene linkage, I will give you a little bit introduction about the genes and chromosome. And in my next lecture, inshallah, I will discuss in detail about the genes and chromosomes. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में. As all of you know that chromosome present in the form of the chromatin in the nucleus of the cell. And this chromatin, you can see here on the slide, the chromatin, which is thread-like structure. If you observe under the microscope, the chromosome during the interphase of the cell present in which form? Chromatin form, like thread-like structure. और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि दिस thread like structure condense into chromosomes, and I will discuss in detail how it condense and which factors are involved in my next lecture inshallah. इसलिए लेक्चर्स जो हैं वो सुनते रहें, आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वन बाय वन हर टॉपिक के ऊपर मिलेंगे. तो न्यूक्लियस के अंदर आप क्रोमेटिन मटेरियल देखा, क्रोमेटिन मटेरियल आपको कंडेंस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्रोमोसोम्स बना रहे हैं. एंड देन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन्स, एंड दिस डीएनए give rise the genes. DNA, genes, same thing. Gene actually the unit of inheritance है. All DNA is not the gene. हम नहीं कह सकते. I will discuss later. So gene, which is the unit of inheritance, located on the surface of the chromosomes at specific position, and that position is known as locus. जिस जगह पे क्रोमोसोम के जीन लोकेटेड होता है, उस जगह को, उस साइट को लोकस बोला जाता है. सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन स्पेसिफिक साइट्स ऑन द क्रोमोसोम्स, लाइक द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग्स. और यहाँ पे आप डीएनए के साथ प्रोटीन्स के बीड्स देख रहे हैं, फिर प्रोटीन्स और डीएनए आपस में रैपिंग करके क्रोमोसोम्स बना रहे हैं. क्रोमोसोम्स क्या बना रहा है? क्रोमेटिन, मोस्टली जो सेल इंटरफेस के अंदर होते हैं, विच इज़ द लॉन्ग फेज ऑफ द सेल साइकिल. और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, इसके ऊपर भी एक लेक्चर दूँ. इंशाल्लाह आई विल डिलीवर वेरी सून. So chromatin condenses into chromosome during the cell divisions, mitosis and meiosis. So now I have given you a concept about the gene, कि जीन्स जो हैं वो कैसे लोकेटेड करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसकी पोजीशन को क्या बोला जाता है. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द gene linkage. So I have
told you that gene is the unit of inheritance, and gene, you can see here on the screen that gene, the word gene is a Greek word and it's mean generation, basic unit of heredity, and it is the sequence of nucleotides in DNA and RNA. Nucleotides, which you can say that the unit of building block of DNA and RNA, and I will discuss what are nucleotides and what is the chemical composition or biochemical composition of nucleotides in detail in my next lecture. So this gene actually encodes synthesis of the gene product. अब यहाँ पे सोचने की बात है, व्हाट इज़ द जीन प्रोडक्ट. जीन जो है वो भी अपने एक प्रोडक्ट देता है. जैसे आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उनके प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. इस तरह से जीन जो है वो भी अपना एक प्रोडक्ट देता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज़ प्रोटीन इन द सेल एंड RNA. Gene product is RNA and proteins. So this is the basic concept of the gene. You can see here the chromosome, DNA, and that DNA present in the form of the gene. You can see here gene 1 and gene 2. Now in next you can see the sequence of the nucleotides in the DNA. You people are familiar with the structure of the DNA and the biochemical formation of the DNA, which is made up of the nucleotide, nitrogenous nucleotides, which are made up of nitrogenous bases and phosphate group and sugar. So you can see here on the screen guanine, cytosine, adenine, thymine. I will discuss it later. Now यहाँ पे मेरा जो मकसद है सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना है जीन के साथ, क्योंकि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जीन लिंकेज. आई होप सो अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट विल बी डेवलप्ड. देखें आप यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की जो लोकेशन है ऑन द लोकस. चलें अब हम मूव करते हैं जीन लिंकेज की तरफ. तो जीन लिंकेज की थोड़ी सी हिस्ट्री है. आपको पता है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल, वेरी पॉपुलर नेम. whenever we call the genetics, जब भी हम कहते हैं, जब भी हम रिमाइंड करते हैं तो फ़ौरन से हमारे जहन में नाम आ जाता है मेंडल का, बिकॉज मेंडल एक्चुअली इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड द genetics. So I will discuss in detail about the Mendel work in the next lecture. Here I will give you a little bit information and little bit history about gene linkage. So gene was first discovered as a factor by the Mendel. मेंडल ने जीन को एज अ फैक्टर, जीन का जो नाम था वो बाद में इसको दिया गया, पहले वो एज अ फैक्टर डिस्कवर हुआ था, मतलब मेंडल ने उसको एज अ फैक्टर के तौर पे लिया था. फिर उसके बाद मेंडल का जो काम था इट वाज रीडिस्कवर्ड इन 1905. तो 1905 के बाद से ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे विलियम बैटसन, एडिथ रिबिका एंड पनेट, ये 3 लोग थे जिन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसी की तरह के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने पी प्लांट के ऊपर परफॉर्म किए थे इन ऑर्डर टू रीडिस्कवर द वर्क ऑफ द मेंडल. फिर उसके बाद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीन लिंकेज was expanded by the work of the थॉमस हंट मॉर्गन. मॉर्गन का नाम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जेनेटिक्स में, बहुत बड़े आपको बहुत बड़ा काम उन्होंने किया.
and I will discuss it later on one by one inshallah. So फर्स्ट जो जेनेटिक्स स्टार्ट हुई मेंडल से, फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन हम जीन लिंकेज के हवाले से बात करें तो उनमें हमने कहा कि बैटसन थे, रिबिका थे, और फिर उसके बाद जो थे पनेट थे। पनेट स्केयर्स भी बड़े मशहूर हैं, वो भी आपने मेंडल की जो क्रॉसेस थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स एंड वो सेग्रीगेशंस, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद आ जाते हैं मार्गन। तो चलें हम, ये तो थी इसकी हिस्ट्री। उसके बाद जीन लिंकेज होता क्या है? What is basically the gene linkage? As you people know that the genes are present on the chromosome, and genes are actually what? This is the gene is the sequence of the nucleotides of the DNA. So genetic linkage is the tendency of the DNA sequences that are close together on a chromosome to be inherited together during the meiosis phase of sexual reproduction. जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा कि जीन जो कि डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जो हमने कहा कि क्रोमोसोम के ऊपर उनकी अरेंजमेंट बीड्स की तरह होती है, और वो जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं, एक क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर जो हम जीन्स बोलते हैं, वो जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड जीन होते हैं। और क्रोमोसोम्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट्स मीन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को नाम देते हैं कि 22 पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह से है। तो पहले आपको जीन लिंकेज का समझ आ जाने चाहिए कि जीन लिंकेज क्या है। कि जीन्स डीएनए सीक्वेंस, जीन्स क्या है? डीएनए सीक्वेंसेस जो कि लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब उन जीन के जो क्रोमोसोम के ऊपर हमारे जीन्स लोकेटेड होते हैं, वो उनमें लिंकेज होता है। समटाइम वो लिंकेज कंप्लीट लिंकेज होता है, समटाइम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। समटाइम जीन्स लिंक्ड होते हैं, समटाइम जीन्स अनलिंक्ड होते हैं। अब अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको देती हूँ। सो क्या है जीन लिंकेज? कि डीएनए सीक्वेंस के ऊपर, डीएनए सीक्वेंस जो क्रोमोसोम में हमें या जीन हमें नज़र आते हैं, ये इनहेरिटेड करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस फेज ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, टुगेदर इनहेरिटेड करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं टू जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स भी किसके लिए यूज़ होते हैं? जीन्स के लिए यूज़ होते हैं, और मार्कर्स को भी हम डिस्कस करेंगे जीन्स को डिटेल के साथ। तो यहाँ पे जेनेटिक मार्कर्स का वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? जीन्स के लिए। दैट आर फिजिकली नियर टू ईच अदर are unlikely to be separated onto different chromatids during chromosome crossover. So, therefore, they said to be more linked than the marker that are far apart. यानी कि जीन्स जो एक दूसरे के करीब करीब पाए जाते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, वो आपस में लिंक्ड होते हैं, और उनका लिंकेज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द जीन्स विच आर प्रेजेंट फार अपार्ट, जो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं इन अदर वर्ड्स द नेवर टू जीन्स आर ऑन द क्रोमोसोम, द लोअर द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम एंड द मोर लाइकली दे आर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। अब कहते हैं कि जीन्स में रिकॉम्बिनेशन का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है जब वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जब जीन्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे तो उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। जब क्रॉसओवर होता है क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग प्रो फेज 1 ऑफ मियोसिस 1, तो एट दैट टाइम जीन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो कहते हैं कि अगर जीन्स ज़्यादा लिंक्ड होंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, तो उनको सेपरेट करना या उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा, उसके चांसेस कम होंगे। और फिर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो जीन्स जो एक दूसरे से ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, ज़्यादा लिंक्ड हैं, तो वो इकट्ठे जो है टुगेदर दे आर इनहेरिटेड।
ड्यूरिंग द मियोसिस। चले हम ज़रा आगे जाते हैं। ये तो था कि जीन्स का लिंकेज क्या है और कैसे होते हैं। कंप्लीट लिंकेज भी होते हैं, मतलब ज़्यादा करीब अगर होंगे तो जीन्स में लिंकेज ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग, और अगर वो दूर होंगे तो उनमें लिंकेज भी कम होगा। चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक्ड वर्सेस अनलिंक्ड जीन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अनलिंक्ड जीन्स, यहाँ पे हम अनलिंक्ड जीन्स भी देख सकते हैं और लिंक्ड जीन्स भी से देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जैसे 1 2 3 तीन जीन प्रेजेंट हैं, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपस में लिंक हैं। मींस इनका जो लिंकेज है वो स्ट्रॉन्ग है, और इनको सेपरेट करना ड्यूरिंग मियोसिस, जो क्रॉसिंग ओवर में जो सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम रिकम्बाइन करते हैं, तो उस वक्त ये डिफरेंट वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि उनका सेपरेट होना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो जीन अभी जैसे इनको आप देख रहे हैं कि लिंक है, तो इनकी सेपरेशन ड्यूरिंग मियोसिस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर डिफ़िकल्ट होगी। लेकिन कोई जीन जैसे आप जीन 1 देख रहे हैं, दिस इज़ अनलिंक्ड, इसका किसी के साथ लिंक नहीं है, तो इसकी सेपरेशन जो होती है अब डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, जीन 1 इज़ प्रेजेंट ऑन 1 क्रोमोसोम एंड जीन 2 इज़ प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम। जैसे आपको जीन 1 नज़र आ रहा है, तो ये एक जीन प्रेजेंट है, अगर एक जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर है, दूसरा दूसरे के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर है डिफरेंट, तो इस तरह के जीन्स जो होते हैं ये अनलिंक्ड जीन्स होते हैं, और इनकी जो सेपरेशन होती है वो ज़्यादा आसान होती है, यानी इनमें रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। दे कैन रिकम्बाइन ड्यूरिंग द मियोसिस क्रॉसिंग ओवर। इज इट क्लियर नाउ? लिंक्ड वर्सेस अनलिंक्ड जीन्स, unlinked genes and linked genes. The genes which are present on the same chromosomes and close to each other are linked, and the genes which are present on the different chromosome, they are unlinked. Okay. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको दो तरह के नज़र आ रहे हैं, ए बी सी, ठीक है, आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जीन ए एंड सी आर नॉट लिंक्ड, यानी क्रोमोसोम सी के ऊपर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम सेकेंड, ये आपको जो डिफरेंट क्रोमोसोम नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको सी जीन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कहता है कि ये जीन्स जो हैं ए से क्या है, लिंक्ड नहीं है, यानी अनलिंक्ड है, जबकि ए एंड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर लिंक्ड जीन्स, एंड द जीन सी प्रेजेंट ऑन द अदर क्रोमोसोम is not linked with A and B gene. So A and B genes are linked genes and C is unlinked gene. Is it clear? और अनलिंक्ड जीन्स ही फॉलो करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। What is crossing over basically is? Crossing over is the mechanism or the process which occur at the prophase 1 of meiosis 1. What will happen during crossing over? The two chromosome, homologous chromosome. Which chromosomes? Homologous chromosomes come close to each other and their chromatids एट द क्याज़मा। क्याज़मा वो पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर जिसके ऊपर दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्याज़मा क्या है? दिस इज द पोजीशन एट विच टू क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच्ड एंड रिकम्बाइन। एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ है? रिकॉम्बिनेशन है। नाउ यू कैन सी हेयर ऑन द स्लाइड
The one chromosome is orange in color and other is green, little bit green in color, जो भी है. Both pure orange, one is pure orange and other is pure green. मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ. आप दूसरे आगे देखें एरो के बाद कि उनमें जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो दोनों क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज लग रही है आपको. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्रोमेटिड्स, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दे एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड्स, दे एक्सचेंज देयर जीन्स, दे एक्सचेंज, मतलब क्रोमेटिड एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, उन्होंने अपने जीन्स को एक्सचेंज कर दिया. तो और उन्होंने एक नया एक क्रोमोसोम्स जो है एक रिकम्बिनेशन दे दिया क्रोमोसोम्स में. जो हम पहले क्रोमोसोम देख रहे हैं पेरेंटल क्रोमोसोम, और जब उनमें मियोसिस हुई और मियोसिस के बाद यानी क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें बिल्कुल टोटली 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हमें मिल रहे हैं, जो कि हम कहते हैं कि दिस इज़ रिकम्बिनेशन of the parental gene. That's why we are different from our parents. यही वजह होती है कि हमारे अंदर जो चेंजेस आती हैं ना, तो हम एग्जैक्ट कॉपी हों अपने पेरेंट्स की. तो अल्लाह ताला ने फॉर वेरिएशन क्या मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया क्रॉसिंग ओवर का ड्यूरिंग मियोसिस 1 प्रोफेस 1. इज़ इट क्लियर कि कैसे रिकॉम्बिनेशन होगा, कैसे क्रॉसिंग ओवर होगी, 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आएंगे और वो प्लाज्मा के ऊपर अपने क्रोमेटिड्स को एक्सचेंज करेंगे और हमारे पास एक न्यू रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा जो लेटर ऑन. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स की रिकॉम्बिनेशन हुई, ठीक है, और जो अनलिंक्ड जीन्स थे वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ईजीली जो है असॉर्ट करते हैं, सेपरेट होते हैं, जबकि लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो इजीली सेपरेट नहीं करते. चलें जी. ओके, हु इज़ ही? ये हैं जी मॉर्गन, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया जीन लिंकेज के ऊपर, और जो मेंडल का काम था रिडिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट में इनका नाम बहुत टॉप पर है. और इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन और जीन लिंकेज सब कुछ जो है इन्होंने इसके ऊपर इसको डिस्कवर किया और इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया. इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मॉर्गन को, और इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो आप ज़रूर पढ़ें, वेरी इंटरेस्टिंग. चलें जी, अब हम आते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की तरफ. अब जैसे कि मैंने कहा कि लिंक्ड जीन में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. आई हैव गिवन यू अ कॉन्सेप्ट कि लिंक्ड जीन्स हमने कहा कि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और अनलिंक्ड जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम के. तो जो अनलिंक्ड जीन्स होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई होती है एज कंपेयर टू द लिंक्ड जीन्स. Is it clear? So recombination frequency is a measure of the genetic linkage and is used in the creation of the genetic linkage map. Recombination frequency is the frequency with which a single chromosomal crossover will take place between 2 genes during meiosis. And this genetic recombination frequency was discovered by Morgan and many other scientists also involved, but मॉर्गन का नाम बहुत टॉप पे है, तो इसलिए उनके ऑनर में ही इसके लिए यूनिट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं सेंटीमॉर्गन. CM is a unit that describe a recombination frequency of 1%. In this way we can measure the genetic distance between the two loci. यानी सेंटीमॉर्गन जो कि यूनिट है ये हमें डिस्टेंस देता है. जैसे आपने कहा एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान में लिंकेज
उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो क्या है, सेंटीमॉर्गन। और ये सेंटीमॉर्गन जो था, ये यूनिट जो है विच एक्सप्रेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज़ नेम इन हिज ऑनर। मॉर्गन को ऑनर के नाम, उनके ऑनर में इसको सेंटीमॉर्गन कहा गया, क्योंकि काम उन्होंने किया था तो उस सिलसिले में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए जीन 1, जीन 2, एक ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, एक पिंक, उनके ऊपर ए जीन, बी जीन, ए बी एंड बी जीन्स। तो कैपिटल बी, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं, और डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो अनलिंक्ड हैं। और ये जो अनलिंक्ड जीन्स होते हैं ये इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, और हमें न्यू रिकॉम्बिनेशन देते हैं। और क्या है कि रिकॉम्बिनेशन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, लिंकेज होता है, उस पर डिपेंड करते हैं। लिंक जीन्स जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू नॉन लिंक जीन्स जो हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। सो अनलिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं ईजीली ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। इज़ इट क्लियर नाउ? सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द जेनेटिक मैप। देखें, जैसे किसी सिटी का मैप है, किसी कंट्री का मैप है, इसी तरह से जीन्स का भी मैप है, जिसको हम जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप, जो पूरा हेरिडिटी मटेरियल है, जो डीएनए है, दैट डीएनए हैज़ इट्स ओन मैप। और ये जो था फर्स्ट डेवलप्ड किया गया था स्टीवर्ट एंड मॉर्गन ने इसको, अल्फ्रेड स्टीवर्ट एंड थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने जेनेटिक मैप को डिस्कवर्ड किया था, डेवलप्ड किया था। और लिंकेज मैप is also known as genetic map, is a table for a species or experimental population that shows the position of its known genes or genetic markers, genes या genetic markers, एक ही चीज़ है, relative to each other in terms of recombination frequency। तो उन्होंने ये कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हमें नज़र आते हैं बाकायदा, तमाम जीन्स का उन्होंने हर जीन के विच जीन इज़ लोकेटेड इन विच क्रोमोसोम एंड कंट्रोलिंग विच कैरेक्टर, सारी इन्फॉर्मेशन और सारा एक उसका मैप बनाया, उनके दरमियान में डिस्टेंस को शो किया, उनके दरमियान में लिंकेज और नॉन लिंकेज को शो किया। तो ये सारा काम जो है ये किस में आता है, लिंकेज मैप और जेनेटिक मैप पे। इज़ इट क्लियर कि जीन्स की लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम मेक द लिंकेज मैप और जेनेटिक मैप। और इसको डिस्कवर किसने किया, किसने डेवलप किया, इनको अल्फ्रेड ने और मॉर्गन ने डिस्कवर किया, डेवलप किया। और ये जो बस हमने कह दिया कि मैंने बता दिया जैसे कि ये जो जेनेटिक मैप ही है, इसी की वजह से हमें पता है कि विच जीन्स आर क्लोजली प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर एंड विच आर फार फ्रॉम ईच अदर। और इनके दरमियान में जो रिकॉम्बिनेशन, जो लिंक जीन है उनके दरमियान में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो कम होती हैं ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर एज़ कम्पेयर टू द अनलिंक्ड जीन्स। और ये सारी बातें हमें इस लिंकेज मैप से ही पता चली, जेनेटिक मैप से ही पता चली कि कैसे जो जीन्स हैं वो विच जीन्स जो हैं वो सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर एंड विच डू नॉट। ओके जी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट मैप डेवलप्ड बाय द मॉर्गन। और मॉर्गन का आपको पता है उनका जो स्टडी एनिमल था या स्टडी जो उनका मॉडल एनिमल, उन्होंने उस पर काम किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर। और उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ही जो जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं,
और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के उन्होंने बाकायदा पूरा जीन, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं 8 होते हैं। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन सेक्स डिटर्मिनेशन के किस तरह से, और इसके जो 8 क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स का सीक्वेंस था ये डिस्कवर किया था, ये डेवलप किया था मार्कर ने, और ये फर्स्ट मैप था जो उन्होंने डेवलप किया था। आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जीन्स के दरमियान में जो डिस्टेंसेस हैं, और ये एक मैप है। इस तरह से मैप क्रिएट होता है। एक क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है, उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स और फिर उनके दरमियान में डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस जो था सेंटीमार्गन में। और फिर हमें यही पता चला कि कौन से जीन्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, कौन से अनलिंक्ड हैं, किन में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, किन में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। आई होप सो द basic concept of the gene linkage and genetic map will be clear upon you people. If you have any question, kindly ask and I will try my best to clear all the questions upon you people, inshallah. And thank you very much. Listen to the lecture, note down this lecture and subscribe my channel. Allah Hafiz.